Sorry. So dear student, in today's lecture we are going to discuss about unit number 2, that is money market instrument, chapter number 3, that is conventional money market instrument. Why it is called as the conventional money market instrument? That is also called as the traditional money market instrument. That is old instrument which were used for the trading in money market. That is the money market instrument. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेडिशनली इंडिया के मनी मार्केट में यूज किए जा रहे थे ऐसे. ओके, अब ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिया के मनी मार्केट में ट्रेडिशनली मतलब पहले यूज किए जा रहे थे, दैट इज बिफोर मेकिंग इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्म्स इन इंडिया मनी मार्केट. इंडिया के मनी मार्केट में न्यू इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करने से पहले कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते थे? ओल्ड इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते थे. ओके, और उस इंस्ट्रूमेंट को कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है. तो अभी ये हमारा जो थर्ड चैप्टर है, हम थर्ड चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? ट्रेडिशनल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिससे दूसरे वर्ड में कन्वेंशनल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है. ओके, नाउ लेट्स सी, बट बिफोर दैट लेट्स सी the content or the learning objective of our today's lecture. That is what we are going to learn today. Introduction of money market instrument, meaning of money market, what are the instrument of money market, and the conventional instrument of money market. Okay, so let's see one by one. Introduction. Introduction. There are several money market instruments. In most, generally there are two types of money market instrument. Basically, there are two types of money market instrument. Okay, and these two types of money market, number one is conventional or the traditional money market instrument, and the second is modern money market instrument. But in today's lecture we are going to discuss about the traditional or the conventional money market instrument. मतलब जो ओल्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है वो, जिसे दूसरे वर्ड में कन्वेंशनल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मॉडर्न मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. ओके, बट पहले conventional money market instrument. Okay, now let's see in the introduction. There are several money market instruments in most Western countries, including treasury bill, commercial paper, banker acceptance, deposit, certificate of deposit, bill of exchange, repurchase agreement, federal funds, and short-lived mortgage and asset-backed securities. The instrument bear differing maturities, currency, credit risk, and structures. Are basically two types, conventional and modern instrument. मतलब ये वेस्टर्न कंट्री में यूज, वेस्टर्न कंट्री के या जिस कंट्री का मनी मार्केट डेवलप है उस कंट्री के मनी मार्केट में यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट. लेकिन वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल और मॉडर्न. अब ये कन्वेंशनल और मॉडर्न कौन से होते हैं? लेट्स सी कन्वेंशनल कौन से होते हैं. कन्वेंशनल मतलब ओल्ड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? ओल्ड इंस्ट्रूमेंट कौन से जो इंडिया के मनी मार्केट में यूज किया जाता है? कन्वेंशनल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, सी, नंबर 1 treasury bill, call money and short notice money, commercial bill, and promissory note. These are the four conventional or traditional money market instruments that in ahead we are going to discuss in detail. And before that, let's know what is the meaning of money market. Before that, we also discuss about the meaning of money market. But once again, see what is the meaning of money market. Money market basically refers to the section of the financial market where financial instrument with high liquidity and short-term maturities are traded.
इन शॉर्ट, मनी मार्केट ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग किया जाता है। मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है शॉर्ट पीरियड में। ओके, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसका शॉर्ट पीरियड के लिए बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रहा है? समझ नहीं रहा है? जस्ट पुट ऑन चैट बॉक्स, बट अननेसेसरी डोंट राइट ऑन स्क्रीन, क्योंकि वो डिस्टर्ब क्रिएट करता है। इनमें 8 लोग तो आप 8 लोगों की मुझे समझ में नहीं आएगा। कौन क्रैश कर रहा है? इसमें बॉयज एक ही है, समीर। समीर तो पॉसिबल नहीं है। समीर जादव इज अ वेरी गुड बॉय। Do you have any problem? You are not understanding? Just put on chat box. All of you are understanding? Because the lecture is recording. And if you are disturbing in between, then what is the meaning of this? All of you are understanding? Yes or no? Just put on chat box. Then why you unnecessary writing anything on the screen? Don't write anything on the screen. ये किसने लिखा था अभी? वो डेट करेक्ट किया है, रब करो स्क्रीन का मार्क। ओके, सी सो मीनिंग ऑफ मनी मार्केट मीन्स मनी मार्केट ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है जहां पर वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए। मतलब जिस मार्केट में एक दिन से लेकर 1 ईयर तक वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है या ट्रेडिंग किया जाता है, उसे मनी मार्केट कहा जाता है इन शॉर्ट। ओके, सी मनी मार्केट has become a component of the financial market for buying and selling of securities of short term maturity of 1 year or less। मतलब ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है जहां पर क्या किया जाता है, सिक्योरिटी दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का 1 ईयर और उससे कम बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, सच एज ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल। ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। ओके, जिसका मनी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है। Now actually see what are money market instrument. Means what are the meaning of money market instrument? Money market instrument का meaning क्या है? That is the meaning of money market instrument. What is actually the meaning of the instrument of money market? The money market instrument are the financial instrument with short-term maturity up to 1 year and used as a tool for raising capital by the issuer are known as money market instrument। मतलब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एसेट है, जिसका यूज मार्केट से लोन लेने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा जिसको लोन किया जाता है, जिसको लोन की जरूरत है, वो क्या करता है? जिसको लोन की जरूरत है, जिसको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, लोन की रिक्वायरमेंट है, वो क्या करता है? वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिस इन्वेस्टर को शॉर्ट पीरियड के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, वो इन्वेस्टर क्या करता है? वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में इश्यू करता है और दूसरा इन्वेस्टर क्या करता है? उसे परचेस करता है। दैट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ओके, so money market instrument are the financial instrument or financial tool issued by the that is issuer for obtaining capital from the market। okay, these are debt securities। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में इश्यू किया जाता है मनी मार्केट से लोन उठाने के लिए, दे आर डेप्ट सिक्योरिटीज। तो क्या है? वो लोन की सिक्योरिटीज है। वो लोन के लिए एक प्रमोसरी नोट है जो इश्यू किया जाता है लोन के लिए, लोन के बदले, दैट ऑफर फिक्स इंटरेस्ट रेट एंड आर जनरली अनसिक्योर्ड।
मतलब ये क्या होता है, एक पेपर होता है जो एक इंटरेस्ट के साथ पे किया जाता है. ओके, there is no collateral backing up the security and the risk of non-payment is theoretically high. However, non-money market instruments have high credit rating, ensuring that issuer don't default. मतलब issuer जो है वो default नहीं होता है. एक कंपनी को सी व्हाट आर सो जो मनी मार्केट में जो भी ये इंस्ट्रूमेंट बाय एंड सेल किए जाते हैं वो वेरी हाई होते हैं. ओके, वो गुडविल का कुछ इधर लेना देना नहीं है समीप. That is the goodwill win the reputation of the companies. On the basis of this loan is loan obtained. Generally, company obtain loan from the market by issuing share. That is in capital market. Here we are discussing about the money market. Okay, और मनी मार्केट में सिर्फ एक ईयर के लिए ही इशू सिक्योरिटी इशू किया जाता है. यहाँ पर डेप्ट इशू किया जाता है. डेप्ट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब लोन के बदले जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसे सिक्योरिटीज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी को लोन चाहिए मार्केट से सिर्फ एक ईयर के लिए. तो रिलायंस कंपनी क्या करती है, मनी मार्केट से लोन उठाती है. ओके, और उसके बदले क्या करती है, एक पेपर इशू करती है. उस पेपर पर रिटर्न होता है हाउ मच अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द मार्केट एंड व्हाट फॉर व्हाट पीरियड एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट. दैट इज द सिक्योरिटीज. और उसका बाइंग एंड सेलिंग मनी मार्केट में. ओके, गुडविल का इधर कोई इशू नहीं. तो now see, today we are going to discuss basically the conventional money market instrument, that is traditional money market instrument. Okay, वो traditional money market instrument है. अभी कौन से traditional money market instrument है? Okay, number one treasury bill, that is treasury bill. Second, call and short notice money. Third, commercial pay bills. And third is promissory note, that is promissory note. These are the four conventional money market instruments, or these are the four traditional money market instruments which were used before the modern instrument in Indian money market. मतलब इंडिया के मनी मार्केट में जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है कौन से है, that is commercial paper, certificate of deposit, interbank participants, banker acceptance. These are the modern money market instrument. ये मॉडर्न मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आरबीआई ने लॉन्च करने से पहले ये इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में यूज किए जाते थे. इसलिए मनी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, मनी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए फॉर 1 ईयर के लिए. ओके, सो पहला कौन सा है, ट्रेजरी बिल. सो लेट्स सी व्हाट इज ट्रेजरी बिल. सो पहले इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करते हैं, ट्रेजरी बिल. जैसे यहाँ पर ट्रेजर बिल लिया है. ओके, व्हाट डू यू कंसीडर इज एज अ ट्रेजरी बिल. नाउ व्हाट इज दिस ट्रेजरी बिल. This treasury bill basically issued by the RBI on the behalf of state government and central government. Okay, that is this treasury bill is issued by the government, that is state government and central government also. Why? When the state government or central government is in the need of emergency money, then central government and state government just imitate or instruct to RBI to issue government that is security or that is ट्रेजरी बिल इन मनी मार्केट एंड ऑब्टेन मनी. सो जो ट्रेजरी बिल है वो ट्रेजरी बिल इंडिया के मनी मार्केट का ओल्ड इंस्ट्रूमेंट और वो इश्यू किया जाता है हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई द्वारा, इसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से. और वो गवर्नमेंट कब इश्यू करता है ट्रेजरी बिल मनी मार्केट में, जब गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है. ये देखो पैसा दे रहा है इधर 2000 की नोट दे रही है. क्यों दे रही है 2000 की नोट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की, जब दोनों के पास पैसे की कमतरता होती है, तो बोथ द गवर्नमेंट इज हैविंग लैक ऑफ मनी. तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को इमरजेंसी सिचुएशन में जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट क्या करता है, मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल इशू करता है. फिर जो इन्वेस्टर होते हैं
वो इन्वेस्टर क्या करते हैं, ट्रेजरी बिल को परचेस करते हैं, उनके पास का पैसा आरबीआई के पास चला आता है, फिर आरबीआई वही पैसा क्या करती है, गवर्नमेंट को इश्यू करती है, दैट इज ट्रेजरी बिल. सो a short term treasury bill help the government raise fund to meet its current obligations. मतलब गवर्नमेंट की जो करंट रिक्वायरमेंट है, वो करंट रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल इश्यू करती है. ओके, here I have given here, see, the Reserve Bank of India also issues such treasury bill under its open market operation, and this treasury bill issued by the RBI in open market operation, that is OMO, strategy to regulate its inflation and spending or borrowing habit of individual during times of economic boom leading to high and persistent inflation rate in the country. High value treasury bill are issued to the public, which thereby reduces aggregate money supply and economy. It effectively curbs the surging demand rates and in turn high prices, hurting the poorest section of the society. मतलब ये ट्रेजरी बिल आरबीआई तभी भी इश्यू करती है जब हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन होता है. यू नो इन्फ्लेशन मतलब, जो इन्फ्लेशन मतलब हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सब गुड्स एंड सर्विस की प्राइसेस हाई होती है, उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है. और इन्फ्लेशन का हमारे कंट्री के लोगों के ऊपर इफेक्ट होता है. क्यों? क्योंकि लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और उसके बदले उनको कम गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है. फॉर एग्जाम्पल करंटली नाउ द फॉर टोमेटो यू हैव टू गिवन 80 rupees per kg, but before some days that we have to given only 20 rupees per kg. See, that is inflation. But inflation means not only increase price of single commodity. जब किसी सिंगल कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता. जब ऑल गुड्स एंड सर्विस का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल. जनरल प्राइस लेवल मतलब जब सब कमोडिटी की, सब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस हाई लेवल पर होती है तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है. और जब ये इन्फ्लेशन होता है तो उसका इफेक्ट हमारे कंट्री के लोगों के ऊपर होता है और वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है. और वो गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल इश्यू करते हैं. मतलब मार्केट में ये ट्रेजरी बिल इश्यू करते हैं, जिसे ओपन मार्केट कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन. मतलब इन्फ्लेशन क्यों आता है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा पैसा अवेलेबल होता है, लोगों के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की. मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ता है. जब डिमांड बढ़ता है तो जो सेलर होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली उनके गुड्स एंड सर्विस का प्राइस बढ़ाएंगे, तो क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा. किसकी वजह से आया इन्फ्लेशन, क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा अवेलेबल है. अगर उसको कंट्रोल करना है तो अभी आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट के बिहाफ में ट्रेजरी बिल मार्केट में इश्यू करेंगे. फिर जो इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे, वो ट्रेजरी बिल परचेस करेंगे, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे. और उनके पास का पैसा, मतलब मार्केट में जो पैसा है वो मार्केट में से पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा और मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी विल बी लोअर इन द इकोनॉमी. मतलब मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, बैंकों के पास भी पैसा कम अवेलेबल रहेगा. बैंकों के पास पैसा कम अवेलेबल रहेगा, लोगों के पास पैसा कम अवेलेबल रहेगा, मतलब लोग क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे. कम डिमांड करेंगे, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का. अगर डिमांड कम हो गया तो जो सेलर है, मार्केट में आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करने के लिए, उनको तो उनका गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा. सो जो पहला प्राइस हाई था वो क्या किया, कम किया. किसकी वजह से, दिस प्रोसेस की वजह से. सो ट्रेजरी बिल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन आल्सो in open market operation, that is OMO, by Reserve Bank of India. Okay, so treasury bill is a securities issued by the government of, issued by RBI on the behalf of government for obtaining money to meet their current needs or daily needs. Generally these treasury bill are issued for different purpose or for different periods. जो ट्रेजरी बिल है वो डिफरेंट पीरियड के लिए यूज किया जाता है. So you can also see treasury bill. It is a short-term debt instrument.
issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो ट्रेजरी बिल है इट इज अ शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। ये शॉर्ट टर्म का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को लोन चाहिए है ना, तो लोन गवर्नमेंट क्या करता है, मार्केट से लोन लेता है और उसके बदले सर्टिफिकेट इश्यू करता है, दैट इज ट्रेजरी बिल। okay, so treasury bill it is a short term instrument issued by government of India to obtain loan from the market, and this treasury bill is specifically issued for 14 days। now there is no 40 day, अभी 14 days नहीं है। now currently this treasury bill is issued for 3 periods, previously it was issued about 14 days also। okay, so number 1 is 14 days, मतलब ट्रेजरी बिल 4 पीरियड के लिए इशू किया जाता है। नंबर 1 14 डेज के लिए, सेकंड 91 डेज के लिए, थर्ड 182 डेज के लिए, एंड फोर्थ 364 डेज के लिए। मतलब गवर्नमेंट ये पीरियड के लिए ट्रेजरी बिल इशू कर सकता है। कौन से 14 डे के लिए इशू कर सकता है, ओके। देन 91 डे के लिए इशू कर सकता है, 182 डे के लिए इशू कर सकता है और 340 डे के लिए इशू कर सकता है। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन चलता है सिर्फ 1 डे टू 1 ईयर रहता है, एक दिन से लेकर 1 ईयर, और एक दिन एक ईयर में कितने डेज होते हैं यू नो वेरी वेल, ओके। देयर आर सम फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल, ओके। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल? नंबर 1 मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ट्रेजरी बिल में कितना इन्वेस्टमेंट होता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। सेकंड जीरो कूपन सिक्योरिटीज, कुछ भी कूपन नहीं मिलता। ट्रेडिंग, that is there is trading, that is buying and selling of treasury in money market। so these are the 3 features of treasury bill। along with these 3 features there are some advantages and disadvantages of government treasury bill or the treasury bills। number 1 is risk free। treasury bill is risk free। this treasury bill is a highly optimum safety instrument issued by government of India or RBI on the behalf of government, as it is issued by RBI and government, so there is no risk, so it is a risk free instrument। ये जो ट्रेजरी बिल है ये कौन इशू करता है? आरबीआई। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, उसमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता क्योंकि ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये गवर्नमेंट मार्केट से लोन लेता है, उसके बदले सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। कितने दिन के लिए? 14 डे के लिए लोन लिया जाता है, 191 डे के लिए लिया जाता है, 182 डेज के लिए लोन लिया जाता है और 364 के लिए लोन दिया जाता है। और उस डे कंप्लीट होने के बाद, मैच्योरिटी के बाद और ऑन मैच्योरिटी वो रिटर्न किया जाता है। तो देयर इज नो रिस्क। लिक्विडिटी, दिस ट्रेजरी बिल हेल्प टू मेंटेन लिक्विडिटी ऑल द टाइम इन मनी मार्केट। दैट इज जो ट्रेजरी बिल है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। दैट्स व्हाई दिस इज द एडवांटेज ऑफ ट्रेजरी बिल। मतलब हमेशा वो मनी मार्केट में पैसा अवेलेबल करने के लिए हेल्प करता है। देन नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, उसमें किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं है, जो चाहे जो इन्वेस्टर है जिसको परचेस करना है वो परचेस कर सकता है। देन ऑप्टिमम सेफ्टी, ऑप्टिमम सेफ्टी दैट इज इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट एट फेस वैल्यू। उसके ऊपर जो वैल्यू लिखा जाता है, जैसे बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड पेपर, बॉन्ड के ऊपर जो वैल्यू लिखा जाता है, वैसे ही उसके ऊपर जो वैल्यू लिखा जाता है उसी वैल्यू पर वो ट्रेडिंग किया जाता है। सो देयर इज ऑप्टिमम सेफ्टी। देन इट हेल्प टू मेंटेन SLR एंड CRR। SLR that is statutory liquidity ratio and cash reserve ratio। ये क्या है? रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट है जो बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है, और वो रिक्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए जो ट्रेजरी बिल है वो हेल्प करता है।
then to raise short-term funds. That is, this treasury will help to the government to obtain loan from the market for short period. That is to raise short-term funds. जो ट्रेजरी बिल है वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है मनी मार्केट में, मनी मार्केट से शॉर्ट पीरियड के लिए लोन उठाने के लिए. ओके. देन कॉस्ट ऑफ फंड इज लेस. मतलब लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है उसे कॉस्ट ऑफ फंड कहा जाता है, जिसे दूसरे वर्ड में इंटरेस्ट रेट कहा जाता है. उसका जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो कॉस्ट ऑफ फंड होता है वो लेस होता है. ओके. देन limitation of treasury bill, that is disadvantages of treasury bill. Along with these advantages there are some limitation or disadvantages of treasury bill, which are yield or return is low. मतलब ट्रेजरी बिल के ऊपर जो भी रिटर्न मिलता है, जिस इन्वेस्टर ने ट्रेजरी बिल परचेस किया है या ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर मिलने वाला जो यील्ड है, जिसे दूसरे वर्ड में रिटर्न कहा जाता है, वो लो होता है एज कंपेयर टू the return from other instrument like certificate of deposit, banker acceptance, shares. ये जो अदर इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जो मिलने वाला रिटर्न है वो ज़्यादा होता है, और जो ट्रेजरी बिल से मिलने वाला जो रिटर्न है वो कम होता है. दिस इज द लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेजरी बिल. देन टैक्सेशन. यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स भी इम्पोज करती है ना. जिस जो रिटर्न मिला है उस रिटर्न के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर सकती है, जिससे क्या हो जाएगा, जो रिटर्न मिला है वो भी कम हो जाएगा. देन लास्ट, रिटर्न रिमेन कांस्टेंट. मतलब जो भी रिटर्न मिला है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वही उतना ही रिटर्न मिलेगा ना. इसलिए वो जैसे शेयर के ऊपर रिटर्न मिलता है, अगर शेयर का प्राइस इंक्रीज हो गया तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, अगर शेयर का प्राइस कम हो गया तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, दैट इज डिविडेंड कम मिलेगा और डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा जैसे शेयर के प्राइस में. लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है, अगर इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहेगा तो रिटर्न भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रिटर्न भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके. सो दीज आर द 3 limitations ऑफ ट्रेजरी बिल. सो dear student, what we discussed today, that is we start discussing today about the traditional instrument of money market, and the important traditional instrument of money market is number 1 treasury bill, second call money and short notice money, third commercial bills and promissory note. Today we start discussing about the first conventional or traditional instrument of money market, that is treasury bill. Okay. Treasury bill, it is a issued by RBI or government for raising fund for the short period from money market. Okay. This treasury bill basically is a short term debt instrument issued by RBI on the behalf of government, that is state government and local central government. इस ट्रेजरी बिल क्या है, एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई गवर्नमेंट की तरफ से मनी मार्केट में इशू करती है और मनी मार्केट में ट्रेडिंग करती है. ओके. वो ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है 4 पीरियड के लिए. नंबर 1, मतलब आरबीआई गवर्नमेंट की तरफ से एक 14 दिन के लिए ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है. दूसरा 91 डे के लिए इशू कर सकती है, 182 डे के लिए इशू कर सकती है और 364 डे के लिए इशू कर सकती है. मतलब इतने पीरियड के लिए अगर उसके लोन के लिए रिक्वायरमेंट है, 14 दिन के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है तो उतने पीरियड के लिए इशू करती है. अगर 182 डे के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है उतने दिन के लिए ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है. अगर 364 डे के लिए लोन चाहिए तो उतने दिन के लिए आरबीआई क्या करती है, ट्रेजरी बिल मार्केट में इशू करती है और जो इन्वेस्टर होता है उसको परचेस करता है. ओके. उस ट्रेजरी बिल के कुछ फीचर्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम होता है. जीरो कूपन सिक्योरिटीज, मतलब उसके ऊपर कुछ भी कूपन नहीं होता है. ट्रेडिंग, ये इसमें जो सिक्योरिटीज है उसका ट्रेडिंग किया जाता है मनी मार्केट में, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज ट्रेडिंग. इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ट्रेजरी बिल के एडवांटेजेस कौन सा है, पहला एडवांटेज कौन सा है, रिस्क फ्री. ट्रेजरी बिल में ट्रेडिंग करने के लिए कोई रिस्क नहीं होता है.
ट्रेजरी बिल मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करता है, मतलब हमेशा पैसा मेंटेन करता है। नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग, कोई कंपटीशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्टिमम सेफ्टी, ये आरबीआई हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक इशू करती है, इसलिए उसका सेफ्टी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये मनी मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट में हमेशा एसएलआर और सीआरआर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि मनी मार्केट में हमेशा पैसा अवेलेबल होता है, तो एसएलआर और सीआर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। देन टू राइज शॉर्ट टर्म फंड, ये गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट पीरियड के लिए लोन चाहिए तो शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लेने के लिए हेल्प करता है। देन उसके ऊपर मिलने वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जिसे कॉस्ट ऑफ फंड कहा जाता है, वो लेस होता है। देन उसके लिमिटेशंस क्या है, दैट इज उसके ऊपर जो मिलने वाला यील्ड है या रिटर्न है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट। उसके ऊपर जो भी रिटर्न मिलता है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स इम्पोज करता है, तो देर इज नो यूज। देन रिटर्न रिमेन कांस्टेंट, उसके ऊपर जो भी रिटर्न मिल रहा है वो कांस्टेंट होता है, उसमें ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अभी इसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है या यील्ड मिलता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो उसका कुछ फार्मूला है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका फार्मूला कौन सा है वो एग्जांपल द्वारा डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी आर हैविंग ओनली less than 1 minute, we stop here। Okay, so if you are having any doubt you can put me।